धारा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। मनोज, सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, और उर्जित पटेल जो कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा की बात जो बार बार की जा रही थी रघुराम राजन की, उसको पूरा करने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ही इट इज नॉट अ सरप्राइजिंग स्टेप कॉज इट वाज लार्जली एंटिसिपेटेड। जैसे हम जी बिजनेस पे रेगुलरली बता भी रहे थे कि उर्जित पटेल साहब और सुबिन गोकरण इज इन द फ्रंट रनिंग, और यहाँ से लेकर लार्जली एंटिसिपेटेड, और इनफैक्ट ये सिस्टम मेकिंग में इन्वॉल्व है, एंड दैट्स गोइंग टू बी नॉट टफ for Urjit Patel साहब to take it forward from here on. NPAs, consumer protection, and यहाँ से लेकर top priorities होगी यार, and let's figure it out कि यहाँ पे लेकर going forward NPA पर कैसा रुख अपनाते हैं। Interest rates, monsoon is going on to be a better one. Interest rates पर क्या उनका रुख होने वाला है, अक्टूबर में पॉलिसी आने वाली है, और यहाँ से लेकर उनका एक नया टर्म शुरुआत होने वाली है एज RBI गवर्नर। We have to keep a very close eye, and he was also instrumental in turning on to the CPI thing, and to the जैसे हमको पता है कि targeted 5% है, वो एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट काफी एक बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने। गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू कीप एन आई कि अनाउंसमेंट कैसे पैन आउट होती है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो क्या क्या करते हैं। दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। जी मनोज, हमारे साथ आर चंद्रशेखर भी हैं, नेस्कॉम चेयरमैन, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। इनफैक्ट आपको क्या लगता है सर कि यहाँ से लेकर टॉप प्रायोरिटीज RBI गवर्नर की, इफ यू कैन जस्ट लिस्ट इट डाउन फ्रॉम हियर ऑन, क्या रहनी चाहिए? I think continued consolidation of the measures which were taken earlier, as you were mentioning, the outgoing RBI governor also talked about some of the agenda, unfinished agenda in terms of cleaning up the balance sheet of banks, bringing a greater degree of stability in the financial sector. Continuing with the steady adoption of greater technology in the banking sector, bringing in much more of security into the electronic transaction system. तो ये जो साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू बन गया है, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। So all of these policies, I think he will be able to maintain continuity. That is the most important thing at the current moment. Sure. जैसे सर आपने बताया कि largely digital initiative है, is there anything you wanted to highlight? जैसे रघुराम राजन साहब was instrumental in bringing the forex reserve from a next level to a next level. What all initiatives this RBI governor do you expect, if you can just sum up? I think that the expectations would be to maintain stability in terms of the inflation rate, in terms of cleaning up the financial system by addressing the question of NPAs of distressed banks or stressed financial institutions. Increasing the pace of adoption of technology in the banking sector to bring more efficient services to the people. And ensuring greater security, because this has become now a very big issue for the banking sector. Yes, sir. So, ऐसे आप बता रहे थे कि larger concerns on security should be addressed, and going forward, consumer protection should be keep an eye. But going forward, Raghuram Rajan Saab was instrumental in keeping the rupee volatility low, और bare minimum उनके कार्यकाल में rupee का volatility जब से उन्होंने join किया था was very less. What do you expect from Urjit Patel Saab from here on? I think that the effort again will be to hold the value of the rupee. This is important for the IT sector, because although in one sense the IT sector benefits when the rupee value depreciates, but in fact the IT sector actually appreciates stability in the exchange rate even more. The second thing is that the IT sector का जो exports है, that is a very important factor in maintaining the value of the rupee, because it accounts for more than half of the foreign exchange inflows into the country. So ये जो इस वक्त एक protectionist drive जो चल रहा है, the protectionist trend which is coming across the world, it is important to see that this does not impact our export earnings from the IT sector and the stability of the rupee overall. Fantastic. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर चंद्रशेखर हमसे बात करने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरे साथ वेणुगोपाल साहब जुड़ रहे हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। अब RBI के नए गवर्नर उर्जित पटेल होंगे। वेणुगोपाल जी, आपके क्या रिएक्शन?
वेणुगोपाल धूत हमारे साथ हैं। सर, उर्जित पटेल अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन? उर्जित पटेल एक यंग और इकोनॉमिस्ट है और काफी काम करने की उनको पहले से ही उनकी आदत है और बहुत मेहनती है और इकोनॉमिक्स का उनका जो नॉलेज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है। तो ये बर्फी की एक यंग गवर्नर, सबसे यंगेस्ट गवर्नर वो रहेंगे अभी तक आए हुए और वो बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। और अभी जो प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है बैंकों में इधर उधर, उसको कैसे सोल्यूशन करे और अपने छोटे उद्योगों को कैसे पैसे ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और ये CRR, SLR जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करेंगे। और इससे सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने 2-4 आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान में आएंगे कि उनकी क्या उम्मीद है, कैसे इन्फ्लेशन कम किया जाए और इसका फायदा होने वाला है। जी, और अगर चुनौतियों की बात की जाए, चैलेंजेस की बात की जाए, आपको लगता है कि इस लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होगा उर्जित पटेल का सिलेक्शन कि रघुराम राजन ने जो तमाम नीतियां शुरू की थी उसको आगे बढ़ाने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं? वो तो रघुराम राजन ने जो शुरू किया था वही उन्हीं के कदमों पे चलेंगे और उनसे भी आगे जा सकते हैं। और देश में जो एक प्रकार की आर्थिक डिसिप्लिन जो हम कहते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो लेके आएंगे। और सबसे पहले मतलब इन्फ्लेशन करने के लिए वो बैंक इंटरेस्ट रेट भी ऐसा करेंगे कि जिसके कारण इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा और पूरा इंडस्ट्री का फायदा होगा। जी, और ये कह सकते हैं कि महंगाई को लेकर एक बड़ा उपलब्धि रही है उर्जित पटेल की। WPI से CPI की ओर शिफ्ट किया है और काफ़ी सख्त माने जाते हैं। आगे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है? वेणुगोपाल जी नहीं हमारे साथ, नैना लाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नैना जी, आप का पहला रिएक्शन, उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे? उर्जित पटेल ये आरबीआई में जो जहां 4 साल रघुराम राजन के टीम में रहे हैं, इसका तो हमें ये जरूर कंटिन्यूटी देख लेंगे कि जहां तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई की तरफ से हो रहा था और उर्जित वही टीम के है, वो कंटिन्यूटी जरूर होगी। जो हमारी एक्सचेंज में जो वॉलेटिलिटी थी उसको जो मैनेज किया है आरबीआई ने इस टर्म में, वो भी कंटिन्यूटी मार्केट्स के लिए ठीक ही होंगे। और उर्जित में जो इकोनॉमिक्स की जो बहुत उन्होंने जो एक्सपीरियंस उनके पास है, जहाँ तक वो यहाँ आरबीआई के पहले भी जो उन्होंने रोल्स किए हैं, उसका एक्सपीरियंस जो वो गवर्नर के ये नए रोल में लाएंगे, उसका भी हमें बहुत फायदा होगा। तो जो चॉइस हुई है वो कंटिन्यूटी की हुई है, पॉलिसीज की कंटिन्यूटी हुई है और जो उनको चूज करने से हम यही देखेंगे कि ज्यादा असर मार्केट्स में नहीं पड़ना चाहिए नियर टर्म में। और जो हम देखें अब अगले 2-3 साल में जहाँ तक बैंकिंग पॉलिसी की तरफ से चेंजेस आ सकते हैं, वो उनका जो विजन होगा उसका तो हमें अब देखना ही पड़ेगा। क्योंकि हम ये तो जरूर देखे हैं कि पिछले 2 साल में नए लाइसेंसेस दिए गए हैं और बैंकिंग सेक्टर में लिबरलाइजेशन काफी आ गई है। जी मैम। नैना हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज धारा भी हैं। मनोज, आप नैना लाल किदवई से कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, वेरी गुड इवनिंग टू यू। जैसे मैम आप बता रहे थे कि इनफैक्ट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड विल उर्जित पटेल साहब, I mean, he is instrumental in many things. यहाँ से लेकर CPI का जो एक रुख उन्होंने अपनाया था, टारगेटेड 5% गोइंग फॉरवर्ड, आपको क्या लगता है कि इनिशिएशन ऑन दिस फ्रंट कितना हद तक he can take it forward from here on? अब देखें तो the new policies that he will bring in will really have to be towards continued liberalization of the banking sector. Okay. The first round of licenses have only just been given, and we need to see how this continues, how the NBFC sector, which is so vibrant in India,
is allowed to continue because it fills many gaps and many holes, but of course needs a light touch regulation. मैम आपको क्या लगता है कि बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मोर कंपटीशन की जरूरत है यहाँ पे? कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा आता है क्योंकि कंपटीशन से क्वालिटी इम्प्रूव होती है और जहाँ तक हम कस्टमर के देखें तो चॉइसेस भी बढ़ते हैं, तो उसका ये फायदा तो जरूर है और इफिशिएंसी तो हमें लानी है। और जो आप देखिए कि जहाँ तक हमारी जो गवर्नमेंट ओन्ड नेशनलाइज्ड बैंक सेक्टर है, 70% of the banking sector is the nationalized banking sector, और वहाँ जो स्ट्रेसेस आए हैं और इम्प्रूव तो हो रहे हैं पर स्ट्रेस है, तो वो जो गैप्स अभी दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक जो नए प्लेयर्स हैं और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो गैप्स को फिल करने के लिए भी पॉलिसीज को ध्यान जरूर देना है। मैम बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि ये गैप को फिल करना है। विल हिज आई बी ऑन ग्रोथ और इज देयर एनी अदर ऑब्जेक्टिव यू सी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम उर्जित पटेल साहब? I think growth is a very important part of the equation where we do need growth to come back, and it is a very difficult balancing act for a governor when you want to do near-term inflation targeting with a view to ensuring that the economy is strong so that growth in the future is very, very strong. Right. Because if inflation is high, it can impact growth in the mid to longer term. And it is that balancing act which becomes important. So I would only hope that the policy of bringing down interest rates continues, that the transmission of that interest rate into the economy, which has been a bit slow, is given a push, and that we see growth return even while we look at managing inflation and really effecting a stable foreign exchange environment. फैंटास्टिक। एज यू राइटली सेड मैम, इन्फ्लेशन मैनेज करना और फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज इन रघुराम राजन वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द फॉरेक्स रिजर्व फ्रॉम अ नेक्स्ट लेवल टू अ नेक्स्ट लेवल। बट मैम यहाँ से लेकर उर्जित पटेल साहब को एक हैंड इन हैंड वर्क करना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में। न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आई है, तो ये फ्रेमवर्क में उनका ऑपरेशंस का इंपॉर्टेंस कैसा रहेगा? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट और हाईलाइट मैम। जो उर्जित पटेल की जो एक्सपीरियंस है वो, this is not the first time he's working for the government. He has represented India before in being our representative in the IMF. बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रशिश श्याम ऐसा जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट। रशिश, आरबीआई के नए गवर्नर का नाम अब सामने आ गया है, उर्जित पटेल नए आरबीआई गवर्नर होंगे। पहला रिएक्शन, उसके बाद मार्केट पर कैसा असर देखते हैं जब मंडे को खुलेगा? और आपको एक बार फिर से बता दें कि आरबीआई के नए गवर्नर का ऐलान हो गया है। उर्जित पटेल अब नए गवर्नर होंगे। हम रशिश शाह से बात करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई के नए गवर्नर के नाम का ऐलान हो गया है। उर्जित पटेल जो कि मौजूदा डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, वो अब नए गवर्नर होंगे। मनोज धारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सभी का ये कहना है कि ये अच्छा डिसीजन है, कंटिन्यूटी इससे मिलेगी। जो आरबीआई की पॉलिसीज अभी तक चल रही थी उसको आगे बढ़ाने में उर्जित पटेल अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, उर्जित पटेल अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। अभी डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के उर्जित पटेल, बहुत यंग हैं, डायनेमिक, एनर्जेटिक माना जाता है और रघुराम राजन के साथ उनका पुराना साथ रहा है। आईएमएफ में भी दोनों साथ थे। 2013 में भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे और मॉनेटरी पॉलिसी 2013 से संभाल रहे हैं उर्जित पटेल। तो महंगाई को लेकर काफ़ी सख्त, और उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था, उसके बाद ही जो एक शिफ्ट है वो WPI से CPI की ओर हुआ और तो खुदरा महंगाई पर फोकस उसके बाद शुरू हुआ था।
निर्मल जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल होंगे, आपका पहला रिएक्शन? हेलो जी निर्मल सर। हाँ, तो मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, और उर्जित पटेल साहब जो है वो आरबीआई और सरकार की कार्यप्रणाली को अच्छे से समझते हैं, तो काफी अच्छा चुनाव है। जी, चैलेंजेस की बात की जाए तो क्या क्या प्रमुख चैलेंज होंगे उनके सामने? आप दोहराइए एक बार। उर्जित पटेल के लिए अगर चुनौतियों की बात की जाए तो आप क्या चुनौतियां देखते हैं? तो चुनौतियां ऐसे दो बड़ी चीजें हैं, एक है जो पीएसयू बैंक से उनका रिवाइवल, और दूसरा इन्फ्लेशन। जी, इन्फ्लेशन को जो काम जो चालू हुआ था उसको कंटिन्यू करना है, उसको एक लॉजिकल तरीके से पूरा करना है। तो सबसे बड़ी चैलेंज इस समय जो है वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी बैलेंस शीट को फिर ठीक करना, उनके जो एमपी के इश्यूज है उससे बाहर निकलना, और जो इन्फ्लेशन की जो टारगेट करके जो एक नियंत्रण में रखना है तो उसे बरकरार रखना, ये दो चीजें बड़ी होगी। जी, और महंगाई को लेकर वो काफी सख्त भी रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले समय में भी जो इंटरेस्ट रेट को लेकर लगातार आरबीआई और सरकार के बीच में थोड़ा सा तानातानी रहती थी, वो आगे भी देखने को मिल सकती? मैं समझता हूँ वो अगर महंगाई की दरें अगर काबू में आएगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगी। जहाँ तक सारे इंडिकेशन है, मॉनसून अच्छा है और रिफॉर्म की तरफ सरकार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका रुझान भी बहुत अच्छा है। तो उसको देखकर लगता है कि ये जो रेट कट या जो इंटरेस्ट ब्याज की दरें जो कम होगी वो पॉलिसी और मैक्रो वेरिएबल के चलते होगी। इसमें कोई एक गवर्नर या दूसरे गवर्नर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी, और काफी यंग हैं, काफी एनर्जेटिक माने जाते हैं उर्जित पटेल। आपको लगता है कि उसका भी असर देखने को मिला जो फंक्शनिंग है खासकर आरबीआई की? मैं समझता हूँ हाँ, क्योंकि पिछले गवर्नर भी यंग थे और उन्होंने काफी डायनामिज्म दिखाया, और काफी वो जो एनर्जी है वो इस मतलब देश जिस समय जिस ग्रोथ के फेज से गुजर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो ये काफी अच्छा चयन है, तो यंग है और डायनामिक है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। निर्मल जैन हमसे बात कर रहे थे, और सभी का ये कहना है कि कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल का डिप्टी गवर्नर से गवर्नर की तरफ बनना। अजय बग्गा हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट। अजय जी, आप कैसे देखते हैं उर्जित पटेल अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे? जी, कंटिन्यूटी है। उन्हीं की रिपोर्ट पे काफी बैंकिंग रिफॉर्म्स चल रहे थे अभी पिछले सालों में, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर से, कंटिन्यूटी है और थोड़े हॉकिश हैं। तो मार्केट ऐसे ही इनको एनालाइज करेगा। एफआई फ्लोज के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मॉनेटरी जो सख्ती चल रही थी पॉलिसी की, टाइट पॉलिसी की, वही जारी रहने की संभावना ज्यादा बनती है। और रेटिंग एजेंसीज के लिए पॉजिटिव है। मार्केट, बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि रेट कट और आगे एक्सटेंड हो जाएगा रेट कट की एक्सपेक्टेशन, गिवन के इन्फ्लेशन की आज क्या हालत है। तो इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा, मॉनेटरी टाइटनेस पे फोकस रहेगा। तो बॉन्ड मार्केट में आप रिएक्शन देख सकते हैं, रुपी थोड़ा स्ट्रेंथन हो सकता है। और तीसरा एफसीएनआर जो हैंडल करना है रिडेम्पशन, उसके लिए कंटिन्यूड एक्सपीरियंस हैंड है, तो वो पॉजिटिव है। इक्विटी मार्केट्स में एफआई फ्लोज के लिए पॉजिटिव है, बट थोड़ा बैंक निफ्टी में वीकनेस देख सकते हैं मंडे सवेरे, क्योंकि यही होगा कि इतना नरमी का एक माहौल नहीं रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी में, तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा और मार्केट्स के लिए ओवरऑल। बट यही उम्मीद है कि एफआई फ्लोज तेजी से आएंगे, तो मंडे दोपहर तक हम देख सकते हैं फिर से रिकवरी आते हुए। जी, तो कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं, अजय बग्गा भी यही मान रहे हैं। और